हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ रिवाइज इंडिया, जिसमें मेरे साथ आप सैम्पल पेपर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ बैठूंगा सॉल्व करने के लिए सारे क्वेश्चंस और हम इसके आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सैम्पल पेपर विच इज़ ऑफ साइंस और इस वीडियो का सोर्स है ओसवाल सैम्पल पेपर्स। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से है, which is which of the following is correct observation of the reaction shown in the above setup? Brown powder of magnesium oxide is formed. A colorless gas which turns lime water milky is evolved. Magnesium ribbon burned with a bright light, okay, reddish brown gas with a smell of burning sulfur has evolved. तो यही इसने बोला है कि पहले हम अपैरेटस को चेक करते हैं अच्छे से। ये बर्नर है, पेयर ऑफ टोंग्स से हमने मैग्नीशियम रिबन पकड़ रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के एशेस बन के नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ टोंग्स से मैग्नीशियम रिबन पकड़ रखा है, तो आई बिलीव इसका आंसर सी होना चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Methane gas released from wastewater treatment plants can be used as a source of fuel. Which chemical equation represents the combustion of methane to produce energy? So we know methane is CH4, and for combustion it should be combined with O2, which is oxygen. So we clearly eliminate the option A and C. A and C are wrong. Similarly D, because it's reacting CO2 with O2, so it is also wrong. The correct answer is B option, because it is the correct equation for combustion. CH4 plus oxygen gives carbon dioxide and water. Yes. So answer 1 is C. Answer 2 is B. Let's come to the third question. Acid present in tomato is methanoic acid? No. It is present in nettle sting and bee sting. Lactic acid, again, it is present in milk. Acetic acid is vinegar. And the option which we are left with is oxalic acid. So which should be the correct answer? Okay, answer 3 is D. Let's come to the next question. It is boulders use plaster of Paris to make a surface layer of the inner walls of a building. Which property of plaster of Paris powder makes it suitable building material? Option A, it is lightweight. It is found readily in nature. It is white in color. It gets hard when mixed with water. So yes, option D should be the correct one, because when POP is reacted with water, we know it forms gypsum, which is CaSO4, which is a white hard material. So option D should be the correct one. Next question is also from chemistry. Question number 5. The electron dot structure of chlorine molecule is. So the chlorine molecule have only one valence electron, only need one valence electron to complete its octet. So its valency is 7. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 electrons can't be in the valence shell. So it is wrong. Now here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 can also not be in a valence shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here it is making 8, but no. Chlorine also, here also should be 2 more electrons. C option should be the correct one, because it is correctly representing the octet of chlorine.
C option is the correct one. Next question, question number 6. A part of homologous series is shown below. C3H4, C4H6, C5H8. Which homologous series can you think it belongs to? We have 3 carbon molecules, C3, and 4 hydrogen molecules. Let's study it. 4 hydrogens. You put here 2 double bonds. No, not required. And here, yeah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yeah, complete. So this should be making 2 double bonds. I'm showing it to you. This should be the structure of it. Hope it's visible. Carbon, and one more carbon. Yes, here is a double bond, and again here is also a double bond. And we know if there is a double bond in the equation, it is a alkene group. So let's see which else belong to an alkene group. C2H2, no. It is alkyne group. No. C2H4, no. Should also not be there. Actually, it is alkyl group. Not even alkyne, it's alkyl, I guess. Yeah. C3H4. We have to draw its structure to get the correct answer. Yeah. So to get the double bond, if we if we create a triple bond here, 1, 2, 3, 1 hydrogen. Oh, it is an alkyl group. Alkyne group it belongs. Okay, it belongs to an alkyne group. So this also belongs to an alkyne group. Option A should be the correct one. थिकनेस बहुत ही ज़्यादा हो गई है, इसको थोड़ी मेंटेन करते हैं. This is the correct one. Now, next question is again from chemistry. What is X in the reaction? Aluminium plus 2 aluminium plus 3 water, H2, gives aluminium oxide, O3. And what should be the X? So we are left with hydrogen and also there is 3 oxygen atoms, the 3 oxygen atoms is satisfied. We are only left with hydrogen gas. Okay, I guess B should be the correct answer for it. We'll see to it later. All the solution we'll see. A small hair-like structure in the upper part of the human respiratory tract, which is here present in our nostrils. It is talking about. These structures traps the dust particles, germ and chemical entering the human body during breathing. Smoking is likely cause of just a second here. Likely to cause infections in respiratory tract. Which statement explain the fact? Okay. Smoking destroys the hair-like structure. Smoking causes excessive growth of these hair-like structure. No. Smoking stimulates hair-like structure to release harmful chemicals. No. These protects from harmful chemicals entering our body. Smoking makes the hair-like structure wet and they fail to trap the dust particles. No. So the correct option we are left with is A. Option A should be the correct one.
The cerebellum in the brain controls the voluntary actions of the body. Which of these actions is controlled by cerebellum? इट इज़ क्लियरली मैंशन, ये क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि जो हमारा सेरिबेलम है वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इनमें से कौन सा एक्शन हमारा वॉलेंट्री एक्शन है? हार्ट का बीट होना। हम हार्ट की बीट को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट होके रहेगा। तो बीटिंग ऑफ हार्ट तो हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वाटरिंग ऑफ माउथ। जब भी हम कोई टेस्टी सा खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है, तो दिस इज़ वाटरिंग ऑफ माउथ। ये भी वॉलेंट्री नहीं है, ये अपने आप आता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब ज़्यादा पानी निकले कभी कम पानी निकले, ये आएगा ही। द नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग ऑफ आई। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते कब आपकी आई ब्लिंक करेगी, वो करेगी ही करेगी। इफ़ यूल फोर्सली स्टॉप और ट्राई टू कंट्रोल इट, इट विल बर्न योर आइज। आंखों में बहुत जलन मचेगी अगर आप इसको खुद से कंट्रोल करना चाहोगे। बट जंपिंग फ्रॉम अ हाइट, एक ऊंची हाइट से कूदना एक वॉलेंट्री एक्शन है। अनटिल एंड अनलेस यू आर डिप्रेस्ड, ऑब्वियसली डिप्रेशन में भी जंप किसी भी ऊंचाई से नहीं कूदना, मजाक था ये। बट जंपिंग ऑफ अ हाइट इज अ वॉलेंट्री एक्शन। डी। The 10th question. A student, while observing an embryo of a gram seed, listed various parts of the embryo as listed below: testa, micropyle, cotyledon, tegmen, pumil, and radicle. ठीक है. On examining the list, the teacher commented that only 3 parts are correct. Select these 3 parts of the 3 correct parts. Now we know microphyll we haven't studied, so this is cancelled. Cotyledon, yes, we have studied it. So, or yeah, tegmen we also haven't studied, so the option we are left with is cotyledon, plumule, and radicle. So which option correct? These 3. This contains testa, so it is wrong. It is wrong. Oh, why this marker? Let's decrease the thickness of it as well. Yeah, yes, hope it is visible now. Yeah, it is wrong. The next option is cotyledon, tegmen. We haven't studied tegmen, so this will also be the wrong. Cotyledon, plumule, and radicle. Yes, these 3 we have studied, so this should be the correct answer. This is not thick enough. I think I should change the color. Yeah. Yes, this is the correct option. In the next question, a cross between pea plant with white flowers with small v and small v, it is a genotype, and the pea plant with violet flowers, capital V, result in F2 progeny, in which the ratio of violet and white flower will be. It is asking for the F2 generation, F2 progeny. So we know that when we, here I can't write, I have to write here only. So here I'm writing it a bit above, so the area shouldn't be get messy. Here, when we cross between the, it is not visible above here. Okay, here it is visible, VV and small v. In the F1 progeny, in the F1 progeny, it will give it will give all the capital V and small v's. Capital V and small v. So all are violet. But in F2 progeny, the ratio will change because it is crossed with another capital V and a small v. Here I can't write again, a small v. So this combination, this and this,
will cause a white flower because both of the characteristic are small v and small v. Getting? So the ratio will be 3:1. So which option is correctly saying 3:1 is option number C. Okay. A student wants to obtain an erect image of an object using concave mirror of 10 centimeter focal length. What will be the distance of the object from the mirror? Okay. We know that in almost every case except the sixth one, जो कॉन्केव मिरर होता है वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मतलब गिव हमें प्रोड्यूस करता है, पर सिर्फ जो लास्ट वाला केस है द सिक्स केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द here this is suppose the focus and this is the pole. Here it is a shaded part. This is the shaded part. So the object should be placed here, by which after coming here it will go from focus, and from pole it will go here. So they won't meet at in the real plane, it won't meet. So हमें इसको मिरर के पीछे ले जाएंगे और ये वर्चुअली मीट करके इमेज बनाएगा. इसको हमने एक्सटेंड कर दिया और हमने इसे इधर से एक्सटेंड कर दिया. So the image produced will be here. Here the image will be produced. What happened to the mark? Yeah. I know it looked messy, but the मतलब निचोड़ इस बात का ये है कि जो फोकल लेंथ के हमें आगे रखना पड़ेगा. सो द इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन 10, क्योंकि हमें फोकस से आगे रखना है, तभी हमें एक इरेक्ट इमेज मिल सकती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इवॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर. अब रेनबो की फॉर्मेशन में हमने देखी हुई है, इसमें सबसे पहले वेयर शुड आई राइट इट अगेन, यहाँ पे खाली जगह, चलो यहाँ लिखते हैं. सपोज इट इज़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ से सनलाइट आ रही है अंदर. सबसे पहले ये यहाँ से हल्की सी रिफ्रैक्ट होगी, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जाएगी इधर, एंड यहाँ से फाइनली ये पूरी स्कैटर हो जाएगी हमारे वेब ग्योर में. राइट. यहाँ से भी थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा डिस्पर्जन चालू हो जाता है, बट जो मेजर पार्ट होता है रिफ्लेक्शन का वो यहाँ पे अकर होता है. दिस इज द करेक्ट पार्ट. हियर द सनलाइट इज कमिंग. ये सन है, ये सनलाइट ऐसे यहाँ पे आ रही है. गेटिंग? कि एक एटमॉस्फेयर में वाटर का ड्रॉपलेट है, सनलाइट आई, सबसे पहले वो रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होके पानी के अंदर गई, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड लास्ट डिस्पर्जन. देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन कह रहा है. रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग. नो, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन. दिस शुड बी द करेक्ट वन. लेट्स सी. Refraction, dispersion and internal reflection. Okay. Refraction, dispersion and total internal reflection. So कौन सा आंसर आपको लगता है इसमें सही होगा? According to me, I'm confused between two options, which is B and C. I think B should be the correct answer of this, because सबसे पहले रिफ्लेक्शन होकर अंदर लाइट रे एंटर करती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जब वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस से, ड्रॉपलेट के इस वाले सरफेस से जब लाइट रे आती है तो पूरी टकरा के वापस आती है. तो refraction, reflection and dispersion. So the B option should be correct. Okay. Next question. Okay.
Yeah. Choose the correct option which gives correct matching of the item given in column 1 and column 2. ठीक है, let's see. Physical environment, exposure to UV radiation, chlorofluorocarbon compound and decomposers. ठीक है, we know क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते थे, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे. इतना तो हम पढ़ के आए हैं आर एनवायरमेंट चैप्टर में. इसको हमने मैच कर दिया सी से. हियर इट इज करेक्ट आंसर ऑफ सी. अब एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है, तो इट इज बी. अब देखते क्या पता हमें इन्हीं से आंसर मिल जाए, हमें सारे देखने ही ना पड़े. बाकी हम देख लेते हैं. डीकम्पोजर्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, तो इट इज डी. एंड अल्टीमेटली physical environment is abiotic compounds, A. It's CDAB. CDAB. Okay, it is A का थर्ड और सभी में दे रखा है, कोई बात नहीं. B का है स्किन कैंसर. B का फोर्थ 2 में दे रखा है, तो हमारा A एलिमिनेट हो जाता है और डी एलिमिनेट हो जाता है. अब हम आगे जाते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. अब ओजोन लेयर को डिप्लीट करना फर्स्ट ऑप्शन है. फर्स्ट इज गिवन इन बी, सो द बी इज द करेक्ट वन. बी हमारा करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. एक्स इन द गिवन फूड चेन इज. अब देखो पैडी प्लांट, इट इज प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर एंड द स्नेक इज सेकेंडरी कंज्यूमर. अब अगर यहाँ पे एक और ऐड कर देते, सपोज हॉक ऐड कर देते या पिकॉक ऐड कर देते, तो भी ये लाइन इधर आके एक्स पे ही अटकती, क्योंकि एक्स है डीकम्पोजर्स. एक्स शुड बी द डीकम्पोजर्स बिकॉज वो सबको खा लेते हैं. कोई भी चीज़ अगर डेड और डीके होगी तो उसी डीकम्पोजर्स खा लेंगे. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा ले तो वो हमारा टर्शरी कंज्यूमर होगा. करेक्ट, क्योंकि ये 3 हमारी फूड चेन में ऑलरेडी आ गए. टर्शरी कंज्यूमर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गेटिंग. अब अगला क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द बैलेंस इकोसिस्टम. It is made up of interconnected food chains. Balanced ecosystem, interconnected food chains, it's to be considered. It involves independence among living organisms and the environment. No, it is B option is incorrect. Animals are dependent on plants, but plants are not dependent on animals. This is also wrong. Then plants what law? It is partially wrong actually. It is not completely wrong. It involves community made up of different population of organisms. It can also be considered. So the in R true R is okay. Oh, what I was doing. Incorrect about the statement. Okay. सो इंटरडिपेंडेंस तो होता ही नहीं है, तो बी शुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो बी को हम टिक कर देते हैं. अब असर्शन रीजनिंग, अब हम आएंगे असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पे. लेट्स कम टू द असर्शन एंड रीजनिंग. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा असर्शन. रिएक्शन ऑफ क्विक क्लाइंबिंग विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अभी कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है? The reaction is, पेन से लेते हैं, CaO plus H2O. इसमें हमें पता है कि बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है
CaOH होल 2, CaOH, राइटिंग CaOH होल 2। कैमरा में प्रोडक्ट नहीं रिकॉर्ड हो, मैं प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूँ, बट यू मेक श्योर कि हमें आगे ही लिखना होता है। दो इट इज़ असर्शन रीजन क्वेश्चन, पर अगर 2 नंबर में आए तो हमें प्रोडक्ट आगे लिखना होता है। इट गिव्स अ हाई अमाउंट ऑफ डेल्टा विच ही एंड CaOH ब्रैकेट के बाहर होल 2, ठीक है। तो हमारा असर्शन मतलब बिल्कुल सही है। इन यस रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर राइट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। असर्शन भी है, लाइफ विद वाटर, वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दोनों ही सही हैं। क्यों सही है मैंने रिएक्शन लिख के बता दिया, ठीक है। अगला 18वां क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंटल प्लांट्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। बिकॉज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम पेरेंटल प्लांट्स के ही किसी पार्ट को कट करके या फिर एनी अदर मीन्स से हम मार्कर क्यों कंटिन्यूसली चल रहा है, व्हाट हैपेंड, हाँ ठीक है। तो इसका रीज़न क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम आती है, बहुत कम वेरिएशन आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जस्ट अ सेकेंड। अब हमने देखिए क्वेश्चन 18वां आपने पढ़ लिया है कि पेरेंट्स, इसमें बोल रहा है पेरेंट के कैरेक्टर्स प्रिजर्व किए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरेंट्स के ही, सपोज स्टेम काट के, मैं रोज का एग्जांपल दे रहा हूँ, काट के दूसरी कर देती है और सेम उगाता है कोई, सपोज काट के ये वेट रोज नहीं होगा, इसका कि ये भी ये सेक्शन हो जाता है बहुत और बहुत स्लोली आगे गेटिंग। तो इसका भी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, is it completely visible? Yes. Should I increase size? Yeah, it will go out of frame. Yeah, the net charge on the current carrying conductor is always 0. ये assertion सही है, क्योंकि no it's the reason, sorry, reason net charge of carrying conductor is always 0, will come to it. A current carrying state conductor experience of force when placed perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, इसमें असर्शन तो हमारा सही था, ये मतलब सॉरी रीज़न हमारा सही था, असर्शन भी, क्योंकि यस इसमें हमारा लगेगा ये वाला रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट। इसमें इसको आप याद कर सकते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर इज फोर्स, मदर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भी हमारा असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट वी नो कि एक्सप्लेन इसे ये नहीं करता, एक्सप्लेन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं है, बट दोनों सही है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेज असर्शन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि वी नो कि एन इकोसिस्टम में
ह्यूमन, एनिमल से लेकर ट्रीज, लैंड, एयर सब आता है। देन रीज़न बोल रहा है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली इज रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, विच आई गेस सी ऑप्शन इज देयर। एक सेकेंड, इससे मुझे कुछ याद आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक ऊपर भी करा था ये, या इसका ओह इंटरडिपेंडेंस, ये तो सही है, सॉरी 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 सॉरी, ये इसका बी ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं है। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस ही शो करता है। आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर 16 इज सी ऑप्शन। क्लियरली मैंने गलती से इंटरडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस पढ़ लिया था। ओके, तो सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन का सही आंसर होगा। अब हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अगर हम पूरा पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम इसके आंसर की चेक कर लेते हैं थ्रू द ओसवाल बुक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही, 1 मार्क। नोट टेक करना ज़्यादा बेटर है, बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। सही है। इसकी ये भी दिक्कत चालू हो जाती है बीच बीच में। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 का भी डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। रीज़न एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें गलती नहीं करनी। इस डी ऑप्शन में लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्यों नहीं है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस होता है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा, 2 का नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आपने आंसर बोला था ए पार्ट, आई गेस। यस, ए पार्ट वाज द आंसर एंड विच इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर था, विच इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए था, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का डी था, विच इज ऑल्सो अगेन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा बी है, विच इज ऑल्सो अगेन करेक्ट। अभी तक हमारा कोई भी गलत नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकेंड, इसमें क्या गड़बड़ हुई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए बता रहा है, हमने सी करा, हमने कहाँ सॉल्व किया था, उधर चलते हैं। दिस इज पेरेंटल, पेरेंट इज F1। ओह गॉड, आई गॉट इट। मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि पहले क्रॉस में सारे टॉल बनेंगे, राइट, सॉरी कैपिटल वी स्मॉल वी बनेंगे, राइट, बट मैंने लिखने में गलती कर दी। ये गलती आपको नहीं करनी है, होपफुली आपने नहीं करी हो, मैंने कर दी। ये इसका 1 मार्क्स कट गया, इट इज़ रॉन्ग। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 में मैंने बोला था मैं कंफ्यूज हूँ 2 ऑप्शन में, बी एंड सी, जो कि दोनों ही सही है, दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है। अगेन आई एम सी, अगर आप बी भी करके आए हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत नहीं है। 2 बुक में आंसर इसका सी दे रखा है, आई एक्सेप्ट, पर इसका बी का ऑप्शन गलत नहीं है, दोनों आर इक्वली करेक्ट। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या 14 का हमारा बी बिल्कुल सही है। ओके, 15 का हमारा सी सही है। 16 का हमारा हमने कौन सा ऑप्शन सही किया था, 16 का हमने चेंज करके सी ऑप्शन कर दिया, विच इज़ अगेन वेरी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17 का ए करेक्ट है, 18 का ए करेक्ट है, 19 का बी भी करेक्ट है, ओके, और 20 का सी भी करेक्ट है। ठीक है, हमारे अभी तक बस कितने क्वेश्चन गलत हुए? 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं आई गेस, या 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। सो हमारे 20 में से 18 मार्क्स बने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, दैट्स वाई आई कैन मेक मिस्टेक्स। बड़े टीचर भी मिस्टेक करते हैं, और मैं भी आपकी तरह एक 10th का स्टूडेंट हूँ, सो आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक। कोई प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलना कि तुम यूट्यूब पे पढ़ाना है और तुम खुद गलती कर रहे हो, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व करा है आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा जिसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी, होपफुली सेक्शन डी, सारे एक साथ कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।